So let's understand HCF in a single video, in a single topic form on Wednesday. What is HCF, and first of all, what is the full form of HCF? Full form of HCF is highest common factor. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है कि फैक्टर क्या होता है. ओके, फैक्टर्स आर ऑलवेज स्मॉल और इक्वल टू द नंबर. ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में फैक्टर्स पढ़ाया हुआ है. ओके, अब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, दो या तीन नंबर के फैक्टर्स को जब आप लिखो और उनके बीच में सेम फैक्टर कोई आता हो तो उसको हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं. और कॉमन फैक्टर्स में भी जो सबसे बड़ा हो उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं. मैं करूंगा ना तो ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा. सबसे पहले हम तीन नहीं, दो ही नंबर का HCF फाइंड करते हैं. स्टूडेंट्स, HCF फाइंड करने के लिए फैक्टर्स फाइंड करना पड़ता है और मैं आपको यहां फैक्टर फाइंड करने के लिए ट्री मेथड बताने वाला हूं. सपोज स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर 36 है. तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, whenever the question is asking to find the HCF, the first work is to do the factors. We have to find the factors of these two numbers. So first of all, we are going to find the factors of 36 by the tree method. So first of all, in a tree method, we will write 36 at the top. 36 को सबसे पहले सबसे ऊपर लिखेंगे. उसके बाद स्टूडेंट्स, we will think that in the table of 2, first of all we consider the table of 2, the lowest table. हम सबसे छोटे नंबर के टेबल में देखेंगे कि when 36 is coming, so our mind will click that 2 multiplied by 18. 2 multiplied by 18 means 36 is coming when 2 is multiplied by 18. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ट्री मेथड, जिससे आपको फैक्टर्स पता चल जाएंगे. नाउ फर्दर 18, देन वी विल थिंक अबाउट द लोएस्ट टेबल. द स्मॉलेस्ट टेबल इज 2. वेदर 18 is coming in the table of 2 or not. If it is not coming, then we will jump on to 3. Okay, so I think that 18 is coming in the table of 2. ठीक है, but by dividing which number? 18 is coming in the table of 2 when we divide 9. Okay students, so here 36 is divided 2 into 18. Now 18 is divided in a tree method. 2 into 9, 2 into 9 is 18, 2 into 18 is 36. This is the tree method to find the factors of a certain number. Okay students, now 9. We all know that 9 is not coming in the table of 2. So what? We will jump into the table of 3. So in the table of 3, when we multiply 3 by 3, when we multiply 3 with 3, answer is 9. So here we can write 3 multiplied by 3. Now here, what are the factors? The factors are 2. The factors are these 2, 3 and 3. We can write these 4 numbers: 1, 2, 3 and 4. Okay, हम इस साइड के ये छोटे नंबर सारे लिखेंगे. Means what we will write here? We will write in place of 36. We will write 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3. 2, 2, 3, 3. We will not write these big numbers. And in the right hand side numbers, we will write the left hand side number, and in the last we will write the both numbers. मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड के जो छोटे छोटे नंबर्स है ना, ये हम सारे आपस में मल्टीप्लाई में लिखेंगे और लास्ट के दोनों लिख देंगे, और ये हमारे मेन फैक्टर्स हो गए. क्या हो गया? देखिए, 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 3s are 36. These are the factors. These are the prime factors students. These are the prime factors. Okay. Now 48.
we will write 48 also in this form. What we will do here? We will 48 write in the top. Now, in the table of 2, 48 coming. When we multiply 24 to it, मतलब स्टूडेंट्स जब हम 24 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 48 आएगा. मीन्स दिस नंबर इज 48. नाउ 24 इज डिवाइडेड फर्दर. We will write 2 multiplied by 12. Okay, students. 12 is divided further. We can write 2 multiplied by 6. Okay, students. Now here 2 multiplied by 24, further 2 multiplied by 12, further 2 multiplied by 6, further 2 multiplied by 3. So see students, this is the tree method to find the prime factors of a number, and we need the prime factors of a number whenever we are going to find HCF. जब भी हम HCF फाइंड करने जाते हैं, हम इस तरीके के प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स लेते हैं नंबर्स का. Prime number, student, what is prime number? We will learn in the next video. But उससे पहले we are going to learn what is the tree method. Tree method आना चाहिए students. 48. तो 48 को किस 2 के टेबल में कितनी बार में आता है? तो 2 into 24 is 48. So this is equal to this. Now 24 further will divide. 2 into 12. Now 12 will further will divide. 2 into 6. Student, जब तक 2 के टेबल में नंबर आएगा ना, तब तक 3 पे आपको जाना ही नहीं है. You are not allowed to take the big tables. You have to take 2 number, 3 number tables. If the number is not coming in 3, then you have to jump into 5, not 4. Because the number, if the number is not coming in the table of 2, it will not come in the table of 4 also. So you have to not take 4. Okay. आपको 4 के टेबल भी नहीं लेना, आपको सीधा 5 लेना. 2, 3, then 5, then 7. ओके, तो यहाँ पर 2 के टेबल में ही सारा आ जाएगा, मुझे उतना जरूरत नहीं. नाउ अब इतना जब मेरा पूरा हो गया स्टूडेंट्स, फर्दर ये 3 भी छोटा नंबर हो गया, बिल्कुल छोटा. ठीक है, तो ऐसे में क्या मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड के सारे नंबर्स आपको ले लेना. दीज आर द फर्स्ट, दिस सेकंड, दिस थर्ड, दिस फोर्थ. लास्ट वाले का दोनों नंबर ले लेना. So what we will write 48 here, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 means 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2, all the left side numbers, and last these both multiply by 3. Okay, so these are the prime factors of 36 and 48. Now after finding this, these are the prime factors of 36 and these are the prime factors of 48. Now what is in common? Common में क्या है students? This 2 is common, further this 2 is common, now 1 3 is common. Okay, so how many common factors are there? Common factors are 2, 2, 1, 2 and 1 3 is there. Students, एक 2 जो है दोनों में कॉमन आया, एक 2 दोनों में कॉमन आया, एक 3 दोनों में कॉमन आया. जो ये कॉमन आएगा ना स्टूडेंट्स, आप कॉमन गलती क्या करते हो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 2 2 है ना, 2 2 लिखोगे नहीं, ये दोनों 2 आपस में कॉमन नहीं है. दोनों के जगह पे आपको एक ही 2 लिखना. इन दोनों की जगहों पे आपको एक ही 2 लिखना है, इन दोनों की जगह पे आपको एक ही 2 लिखना है, इन दोनों की जगह पे आपको एक ही 3 लिखना है. Okay, yeah, 3 is common there. 1 3 1 3. Okay, now after multiplying this you will get the HCF. 2 2 is 4, 3 is 12. 12 is the HCF. 12 is the HCF of this question. Now this was the example of your book. Now I am going to explain the questions of exercise also. So students, let's start with a new question. Okay, HCF. Students, first of all
हमें क्या करना है ना कि ये दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। ये दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक नंबर को ट्री मेथड से हमें सारे 2 और 3 के फॉर्म्स में इसके फैक्टर्स को ले लेना है। किस फॉर्म में? 2, 3 के फॉर्म में फैक्टर्स को ले लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं ट्री मेथड करूंगा 48 का स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा 48 को सबसे पहले 2 के टेबल में कितनी बार में? 24। 2 into 24 बेटा 48 हो जाता है। फर्दर फिर मैं इसको तोड़ूंगा 2 into 12, ओके। तो ये स्टूडेंट्स 24 हो जाएगा। 2 12 24, 24 2 48। इसको ट्री मेथड बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसके सारे फैक्टर 48 के सारे फैक्टर 2 और 3 के फॉर्म में स्टूडेंट्स आ जाएंगे। हमें सिर्फ लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को बाद में लिखना है। अब स्टूडेंट्स 12 है, तो 12 को स्टूडेंट्स हम 2 into 6 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ 6 हम इसको 2 into 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। जब स्टूडेंट्स सब कुछ आ गया तो आपको अब क्या करना है, जितने लेफ्ट साइड के नंबर है, ये 2 है, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार और लास्ट वाले दोनों ले लेने। ये नंबर स्टूडेंट्स हमारे मेन कॉमन फैक्टर्स, ये मेन हमारे फैक्टर्स होने वाले हैं 48 के फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे यहां पर फैक्टर्स ऑफ 48 के factors in the form of 2 and 3. So there are 4 2's and 1 3. So we can write that 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. And it's strange students that if you will multiply these numbers, these will equal to 48. Okay. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16 and 16 3s are students 48. ओके, तो ये आपको फैक्टर्स मिल गया स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ 2 and 3. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 84 बाय द ट्री मेथड, ओके, बाय द ट्री मेथड। 84 के स्टूडेंट्स हमें इस तरीके से सबसे पहले हम लिखेंगे फिर से 2 के टेबल से स्टूडेंट्स 84 किसके 2 when we multiply by 2 with 42 it will become 48. Now will 42 will 2 multiply by 21. Now 21 students, 21 2 के टेबल में नहीं आएगा, it's a odd number, so we will jump into the table of 3. So what we multiply by 3? We will multiply by 3 by 7. And now 7 is a prime number. इसके ये 7 किसी और के टेबल में आएगा नहीं, यहाँ पर बेटा 3 किसी और के टेबल में आएगा नहीं। जब ये दोनों नंबर्स किसी और के टेबल में नहीं आएंगे, सिर्फ खुद के टेबल में आते, तो हमारा ये ट्री मेथड कंप्लीट हो जाएगा। So students here 2, 3 and 7. These 4 are our factors of 84. So we can write here factors of 84 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7. Now, what is common between these two factors? What is common between 48 and 84? First of all, 1 2 is common, second 2 is common, 1 3 is common. Students, 2 2 and 1 3. तो common factors, बेटा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोनों का? कॉमन फैक्टर्स 1 2 कॉमन हुआ, 2 2 कॉमन हुआ, 2 2s are common and 1 3 is common. तो there are total 3 numbers which are common. और कॉमन फैक्टर से जब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो जितने कॉमन फैक्टर है सभी को मल्टीप्लाई कर दे। You have to multiply these 3 numbers when you find the HCF. So HCF of 48 and 84 will be 2 multiplied by 2 multiplied by 3. It means 4 multiplied by 3. It means 12. 12 will be the answer. Okay students, only 3 numbers are in common between 48 and 84. Especially these factors are find by the tree method like this. Okay, you have to remember, आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आपको सबसे छोटे टेबल से इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, इसका कॉम्बिनेशन बनाना, और बाद में कोई 2 नंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी और टेबल में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 3 और 7 किसी भी टेबल में नहीं आते, वो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं।
यहाँ पर भी स्टूडेंट्स लास्ट में हमको 2 और 3 मिला। 2 और 3 भी स्टूडेंट्स किसी टेबल में नहीं आता है, खुद के टेबल में आते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्री मेथड। ये ट्री मेथड अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन में बताऊंगा। सेटअप कर लेता हूं। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द न्यू क्वेश्चन। थर्ड 132 एंड 165। 132 और 165 का HCF निकालना है। मैंने कहा था कि HCF निकालने के समय सबसे पहला काम ये दोनों के अलग अलग फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। कैसे निकालेंगे? ट्री मेथड से निकालेंगे। ट्री मेथड कैसा है? तो स्टूडेंट्स, ट्री मेथड का नियम ये है कि आपको छोटे छोटे नंबर से उनका कॉम्बिनेशन बनाना है। नंबर का 132 है तो सबसे छोटा नंबर 2 के टेबल में कितने बार में या फिर 2 से आप कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको टेबल्स अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। यू हैव टू डिवाइड 132 by 2 तो दैट यू कैन गेट द नंबर कि व्हाट नंबर यू विल मल्टीप्लाई टू 2 टू गेट 132 हियर। इफ यू मल्टीप्लाई 266 you will get 130. Okay, now further you have to dissociate this 66. So 2 multiplied by 33 you will get 66. Now further 33 you have to divide. अब 33 स्टूडेंट्स 2 के टेबल में नहीं आए because it's an odd number. ये 3 के टेबल में आएगा और 3 में हम भी चेक करेंगे कि 3 के टेबल में आएगा। नहीं, बिल्कुल आएगा 3 के टेबल में। 3 multiplied by 11. नाउ स्टूडेंट्स, 3 और 11 किसी और टेबल में आने वाला नहीं है। 11 भी किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के टेबल में आता है। 3 भी किसी के टेबल में आता है, सिर्फ खुद के टेबल पे आता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फैक्टर्स, दीज लेफ्ट साइड नंबर्स एंड दीज पेयर्स। ओके, सो फैक्टर्स ऑफ 132 will be 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 11. Okay. Okay, students. So now here we can write this. Now we have to take the tree method for 165. For 165. So we all know that 165 is an odd number. So we cannot make a combination with 2. We have to directly make a combination with 3 here. If we multiply 3 by 55, then we will get 165 students. So how do you know about the 55 number? This is very difficult for you. So you have to simply divide by 3. 65 in rough. In rough work, you can divide 3 by 65. You have 65 by 3 to get this number. You will get that what number will be multiplied by 3 to get 165. Okay. Now 55 further is going to be divided. 55 will not come in the table of 2, will not come in the table of 5, will come in the table of 5, will not come in the table of 3 also. So you have to take directly here 5 and you will multiply 5 by 11. Now you can observe here that 5 and 11 further not coming in the any table. 5 और 11 students किसी भी टेबल में नहीं आता आगे. Then our work is done here. The left side numbers and the last pair. The left side number and the last pair. The left side number and the last pair. Okay. Remember, you have to take the left side numbers and the last pair. Okay, the left side numbers and the last pair. So here the factors of 165 will be the left side number and the last pair. Here, what is in common? Here common is 3 in both. And what is the another common number is 11. So students, 1 3 and 1 11 is common between these two numbers. So common factors are 3 and 11. Students, all you know that. आपको पता है कि कॉमन फैक्टर्स एक बार जब ऐसे निकल गए कि दोनों में 3 और 11 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता। सिंपली दिस इज अवर लास्ट वर्क इन दिस क्वेश्चन। टू फाइंड HCF वी हैव टू मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स एंड वी विल
we will get the answer in the form of 33. 33 will be the common factor between 132 and 165. Okay students, now HCF is done here. दो क्वेश्चंस मैं बता दिया. अब मैं आपको HCF की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए. लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ HCF आर देयर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ एक स्टेटमेंट में बन जाएंगे आपके HCF के, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है तो. स्टूडेंट्स, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज HCF ऑफ वन एंड अ नंबर. मतलब कहीं पर भी दो नंबर्स का HCF पूछा क्वेश्चन आपको और उसमें से कोई एक नंबर 1 है, देन द इज ऑलवेज 1. HCF 1 ही हो जाएगा. स्टूडेंट, सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है. हियर द HCF ऑफ 1 and 7 is 1 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ HCF. बेटा HCF की प्रॉपर्टी होती है, कोई दो नंबर्स का HCF अगर आपको पूछा और उसमें से कोई एक नंबर 1 है, तो आपको कोई कैलकुलेशन, कोई ट्री मेथड से फैक्टर्स निकालने की, कोई कॉमन फैक्टर ढूंढने की, कोई कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके HCF निकालने की जरूरत नहीं है. ये सारे मेथड्स नहीं लगाने. सिर्फ सिंपली ये लाइन लिख देना, बोल देना है कि ये सर जी ये प्रॉपर्टी HCF का कि अगर एक नंबर अगर 1 हो जाए और दूसरा नंबर कोई दूसरा नंबर हो, कोई पर्टिकुलर नंबर हो और 1, जैसे 1 and 7 आपका में एक दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें आपको HCF निकालने की जरूरत नहीं है. बस ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, आपका काम पूरा. नाउ व्हाट इज द सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ HCF? HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1. अगर दो नंबर ऐसा दिया हुआ जो दोनों प्राइम है, उसका भी HCF 1 ही होगा. आपको मैं कैलकुलेशन से बचाना चाहता हूं. कुछ क्वेश्चंस में आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है. आप देखें, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 and itself. प्राइम नंबर्स कौन होते हैं वो बता रहा हूं ताकि ये सेकेंड नंबर समझ सको. ऐसे नंबर्स जो किसी दूसरे टेबल में जाते ही नहीं है, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में ही आते हैं. उनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 और एक वो खुद. उसके अलावा कोई और नंबर कोई और टेबल में वो नहीं दिखते. जैसे कि 2 1 के टेबल में और खुद के टेबल में ही दिखता है. 3 1 के टेबल में और खुद के टेबल में ही दिखता है. 5 1 and 5 7 1 and 7 11 1 and 11 13 1 and 13 17 1 and 17. There are lots of numbers which are prime. प्राइम नंबर्स का मतलब ही होता है एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स ही होंगे और वो 2 फैक्टर्स में एक 1 होगा और एक वो खुद होंगे. बाकी कोई तीसरे नंबर के टेबल में वो नहीं आएंगे. उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं. स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर का एक्सरसाइज है हमारे पास 2.9, लेकिन उससे पहले ही बताने की मुझे जरूरत पड़ गई है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई दो प्राइम नंबर्स के बीच का HCF पूछेगा स्टूडेंट्स, तो वो 1 ही होगा. दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि और कोई कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में होने वाले नहीं है. 1 और किसी दूसरे नंबर के बीच में भी कोई भी कॉमन फैक्टर 1 ही हो सकता है. इसलिए HCF दोनों में स्टूडेंट्स 1 होगा. सिर्फ एक स्टेटमेंट ये लिख देना है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. मैं अभी वो क्वेश्चन निकाल के आपको बताता हूं कि आपके एक्सरसाइज में कैसे है. स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स वो आपके एक्सरसाइज में है, जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. ऐसा बोलता है 3rd नंबर क्वेश्चन जो है आपके HCF के एक्सरसाइज का 1 and 7 के HCF को फाइंड करने बोल रहा है. तो आप बोलोगे हियर द फर्स्ट नंबर इज 1, सो द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स, HCF ऑफ 1 and 7 विल बी 1. डायरेक्ट लिख देना बाय द प्रॉपर्टी. यहां पर भी स्टूडेंट्स लिख देना कि भाई HCF ऑफ 1 and 14 विल बी 1. और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक नंबर अगर 1 हो गया तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट HCF ऑफ 1 and a number is always 1, हमेशा 1 होगा. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स 37 and 29. 37 and 29, these both numbers are prime numbers. आपको प्राइम नंबर्स कम से कम 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स है सब याद रखना पड़ेगा. ये 37 और 29 स्टूडेंट्स जो 5th नंबर क्वेश्चन है दोनों प्राइम नंबर्स है.
तो आपको लिखना पड़ेगा हियर 29 and 37 both are prime numbers. Both are prime numbers. So the HCF of 37 and 29 will be also 1 ही होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस तो मैंने आपके लिए काफी इजी कर दिए। बाकी के पहले 2 क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर्स होंगे उनके बारी बारी से 3 मेथड से आपको 2, 3 और 5 के फॉर्म में उसके फैक्टर्स लिख लेने हैं। फिर लेफ्ट साइड के नंबर्स और लास्ट का पेयर जो है आपको मल्टीप्लाई करके उनके फैक्टर्स के सामने लिख देने हैं। फिर जो उनमें कॉमन नंबर्स आएंगे उनको कॉमन फैक्टर्स करके लिख देना है। उसके बाद वो कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है ताकि आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा हो गया। मैं एक वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ करवाना चाहता हूं और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं खुद से करने के लिए। 3 नंबर्स, लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर है जो मैंने यहां नहीं लिखा है। मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा और 8 नंबर जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7 नंबर तक आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। 6 नंबर आपका पर्सनल आपके खुद का होमवर्क है, वो आपको खुद अपने से करना है। 7 नंबर मैं अभी बताने वाला हूं। So students, here the question number 7 of your exercise 2.7. Find the greatest number that actually divides this and this. इसका मतलब ही यही होता है कि दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी स्टूडेंट ऐसा शब्द का यूज करे ग्रेटेस्ट, वर्ड प्रॉब्लम में जब भी ग्रेटेस्ट शब्द का यूज करे और इस तरीके से 2 से 3 नंबर दे दे तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ग्रेटेस्ट तो मेरा क्या होता है, फैक्टर ही होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स ग्रेटेस्ट। मैं आपको क्लू दे रहा हूं क्वेश्चन। आपको ऐसा बड़ा नंबर फाइंड करना है जो दोनों को डिवाइड करे, मीन्स दोनों के कॉमन फैक्टर हो, दोनों का कॉमन फैक्टर वो हो और वो भी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो इसको सम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको सोल्यूशन में बस इतना लिखना है कि वी हैव, हमारे पास क्या है, 2 नंबर है 112 एंड 176. Okay, we have to find HCF. So first of all we have to find the factors through tree method 112. So बेटा 112 तो 2 के टेबल में आएगा, but what times 2 multiply by 56. 56 से बेटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 हमारा आएगा। नाउ 56 को फर्दर हम करेंगे डिवाइड। अब अगर 2 के टेबल में 56 कितना बार में आएगा बेटा, 28 बार में। ओके, ये आपको फर्दर निकालना पड़ेगा। आपको 2 से 56 को डिवाइड करना पड़ेगा तो आपको ये नंबर मिलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं तो बहुत आसानी से कर देता हूं, बट आपको अगर आपको 2 से ये नंबर को हमने कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो आपको 2 से 112 को साइड में कहीं रफ पेज पे डिवाइड करके मिल जाएगा आपको 56। इफ यू विल डिवाइड 112 by 2 you will get 56। तो आपको अगर यहाँ पर जो नंबर चाहिए आप डिवाइड कर दो इससे, आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जो नंबर चाहिए आप इसको इससे डिवाइड कर दो। नाउ 28 भी बेटा 2 के टेबल में आएगा 14, 2 into 14 is 28। ना 14 भी आएगा 2 into 7। बेटा 7 जो आ गया वो प्राइम नंबर हो गया, मतलब 7 फर्दर किसी और टेबल में आता ही नहीं है। सो ऑल द लेफ्ट साइड नंबर्स एंड द लास्ट पेयर, मैंने कहा था ना, ऑल द लेफ्ट साइड नंबर्स एंड द लास्ट पेयर। सो फैक्टर्स ऑफ 112 क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 112 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 7, 2 into 2 into 2 into 2 into 7। ये स्टूडेंट्स हो गए फैक्टर्स हमारे 112 के। अब हम फैक्टर्स निकालेंगे 116 के और यूज करेंगे 176 के और यूज करेंगे स्टूडेंट्स हम ट्री मेथड 176। ओके, 176 में 2 के टेबल से 88 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 176 आ जाता है।
ओके, नाउ फिर 88 2 मल्टीप्लाई बाय जब 44 करेंगे तो 88 मिल जाएगा। 2 into 44 will be 88। मैंने कहा था कि आपको ये नंबर्स फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी, और होनी भी चाहिए स्टूडेंट्स। आपको मैंने कहा कि अगर ये जो बड़ा नंबर है जिसको आपको अगर फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रहा है और आएगा ही, तो आप सिंपली जो आप 2 ले रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 6 है और ये 2 के टेबल से जाएगा। और मैंने कहा है कि ट्री मेथड में सबसे छोटा नंबर 2, अब 2 से नहीं जा रहा है, ऑड है तो 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से नहीं जा रहा तो 7, लाइन से प्राइम नंबर से स्टूडेंट्स यहां लेने हैं आपको। ओके, तो ये बड़ा नंबर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा कि आपने अगर यहाँ 2 लिया तो यू जस्ट डिवाइड 176 by 2, you will get 88। ओके, तो बड़ा नंबर को प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मैंने आपको रास्ता बताया। इन रफ पेज यू कैन डू दैट, यू कैन डिवाइड 2 सिंपली बाय 176 and you can give this answer as 88। Now what will be of 44? 44 is 2 into 22 will be 44, and what about 22? 2 into 11। Now students 11 और 2 प्राइम नंबर, 11 और 2, फिर फर्दर 11 किसी और के टेबल में नहीं आएगा, मींस आवर ट्री मेथड इज कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू टेक द लेफ्ट साइड नंबर्स एंड द लास्ट पेयर, लेफ्ट साइड नंबर्स एंड द लास्ट पेयर। सो लेफ्ट साइड नंबर्स एंड द लास्ट पेयर वी हैव टू टेक। सो 176 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। ओके, तो आई थिंक the common factors are 4 2s. You can take the first common factor, the second common factor, the third common factor, and the fourth common factor. The common factors are common factors of 112 and 176 are 2, 2, 2 and 2. There are 4 2s are in common. So अगर आपको स्टूडेंट्स HCF निकालना है, so what you have to do? You have to just multiply these common factors. You have to just multiply these common factors. 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2. You have to multiply these 4 2s and you will get an answer here. 2 2s 4, 4 2s 8 and 8 2s 16. 16 will be the greatest number with which you will divide 112 and 116 and you will get the remainder 0. So what will be the answer of this 7th number question? It will be 16. Okay, so this question is completed and the exercise is completed. Thank you so much.